we start our discussion with unit number 5, question number 6, question number 5. The question states that this question number 5 states that if L is equals to X such that X belongs to N and X is less than 5, एक सेट L है जिसके मेंबर्स यानी X हैं और वो नेचुरल नंबर हैं और नेचुरल नंबर जो है वो 5 or 5 से smaller है. And there is another set M. This is M. M is a prime number, uh, and its members are prime numbers, and prime numbers are those which are less than 10. So first of all, we make the relationship from L to M. That is L cross M हमने find करना है first of all, and then we make the relations. These are the 4 parts. According to these 4 parts, we have to make the relation, and also we have to write the domain and the range of the following each relation. So first of all, we will write this at L and we will change it into tabular form. As this is a natural number of up to 5, so we write 1, 2, 3, 4, 5. And M is a prime number sets which is less than 10, and the prime number which are less than 10, they are 2, 3, 5 and 7. Now what we find the relationship between L and M as it is given in the question, and the relation between L and M is L multiply M. Now what will we do? We will multiply L with M. Here we are multiplying the sets. Now this is different from multiplication. This is not like 1 multiply 2, it is 2. In multiplication of sets or Cartesian product, we will write the ordered pair. So we will write all the ordered pair. And how we write the ordered pair? We will start from the first number, take one number from the set L, that is 1, and then we make the relation of this one with each number of the set. That is, first we make the relation ordered pair with 2, so we get this 1 2. Then we make ordered pair of 1 with 3 and we get 1 3. Then with 5 and we get 1 5 ordered pair. Then we make the relation of 1 with 7 and we get this 1 7. It means we take one member from L set and make an ordered pair and an ordered pair with each member of the second set. Now we take this 2 and make the ordered pair with this 2, and with what we'll get, we get 2 2, then 2 3, 2 5, 2 7, and so on. We will make all the other ordered pairs. In this way we will get how many ordered pairs are there or how many elements are there. If we count, it is 5 elements in the set L and 4 elements in the set M. So 5 4s are 20. So there are these 20 ordered pair present in it. Now what will we do? We will find out the relationship between first relation, which is R1. Now what is R1? R1, in R1 we have to write ordered pair. लिखने हमने ordered pair ही हैं set के अंदर, लेकिन इस condition के मुताबिक y is less than x, जिसमें y जो है वो x से छोटा हो. अब ये देखें, अगर हम जो हमने L cross M find किया है उसमें ये वाला ordered pair y जिसमें छोटा है, the first one is 3 2, then it is 4 2, 4 3, 5 2 and 5 3. ये 5 ordered pair हैं जो इसमें, जिसमें y की वैल्यू यानी कॉमा के बाद जो वैल्यू आ रही है that is smaller, so we write this relation. ये 5 ordered pair इसमें लिख लेंगे और ये हमारे पास relation R1 आ गई. अब इसी की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है. हाउ वी फाइंड द डोमेन? डोमेन होता है ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट. अब फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं ऑर्डर्ड पेयर के? फर्स्ट एलिमेंट है 3,
4, फिर 4 रिपीट हो गया, छोड़ देंगे इसको, we left it 5. So here we write domain of R1, it is 3, 4, 5. And range, to find the range, what will we do? To find the range, we will write the second number. I show it with blue. 2 is repeated, we left it. Then 3 and 2 and 3 repeated. So we write range of R1, it is set 2, 3. In this way, we write the domain and range. So this question has this second part. अब सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स वाई हमने लिखना है, ये हमने सब में ही फाइंड करना है. एल वी हैव टू फाइंड एल क्रॉस एम इन ऑल पार्ट्स. ठीक है, एक दफा ये फाइंड कर दिया है, अब बार बार यही चीज फाइंड होगी. और इसमें कंडीशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स, वाई एक्स के इक्वल फाइंड करना है. ठीक है, अब जो y इक्वल टू एक्स है वो वाले आपने फाइंड करने. अब y इक्वल टू एक्स कौन कौन से हैं इसमें, लेट अस सी के वो कौन कौन से इसमें मौजूद हैं. So for that, I show you the next slide. The next slide is this one. So here we have to find R2 in which y is equals to x. So first of all, we have to find L cross M. So this is L cross M answer. Now what are the equal values? So this is 2, 2, 3, 3. In all these values are equal. जिसमें values equal हैं वो वाले हमने लिखने. 5, 5. So only these three. So this is our relation R2 in which y is equals to x. So we write this 2, 2, 3, 3 and 5, 5 ordered pair. Now from we write the domain. Domain is the first of this R2. R2 के जो first elements हैं वो domain है. So this is 2, 3, 5 and range is also 2, 3, 5. So domain of R2 and range of R2, that is 2, 3, 5. Now in the third part, this is the third part of the same question. L cross M इसमें हमने find करना है. We will find the L cross M. Same हमने ये find की है. L cross M. ये सारे इसकी values आ गई हैं. All the ordered pairs are there. Then we write R3. R3 is set that y plus x. If we add y and x, the answer is 6. यानी जो ordered pair में answer 6 आता है add करने से ordered pair के numbers के, तो वो हमने लिखना है. So first one is this one. 1 and 5. 1 and 5 means 1 plus 6 आ जाएगा answer. Then we will write 3 and 3. Its answer is also 6. Then 4 and 2. Its answer is 6. Is there any other? No. So only these. So this is our answer. 1, 5, 3, 3 and 4, 2. So these are the ordered pair according to this condition. Y plus x is equals to 6. Now we write the domain of R3. Domain first elements हैं, यानी 1, 3 and 4. So we write 1, 3 and 4. And range of R3 is the second element of the R3. R3 के second elements जो हैं वो क्या हैं, 2, 3 and 5. So this is 5, 3 and 2. So this is domain and range. Similarly, in the fourth part, we have to find this relation. R4 relation हमारे पास है, ordered pair ही होंगे, लेकिन इस condition के मुताबिक y minus x, if we minus y x from y, answer is 2. So first of all, we will find the same L cross M. This is the answer. ये हर question में हमने show कर दिया है. ठीक है, L cross M हमने हर उसमें find करना है. L cross M ordered pair. अब condition use करते हैं. Now we will use the condition. The R4. It is, this is R4 and R4 said y minus x. Answer is 2. अब आपने वो ordered pair तलाश करने हैं जिसमें
सेकंड एलिमेंट में से पहला माइनस करें तो आंसर 2 आ जाए। जिस तरह अगर ये फर्स्ट है 2 एंड 1, 2 minus 1 तो 1 आंसर, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड। 3 minus 1, 3 minus 1 answer is 2, so it is included. 5 minus 1 it is 4, not included. 7 minus 1 answer 6, not included. 2 minus 2 answer is 0, not included. 5 minus 2 is not included. 5 minus this one, 5 minus 3 answer is 2, it is included. 3 7 not included. 4 5 not included. 7 4 7 not included. 5 2 not included. This is 5 7. 7 minus 5 answer is 2. So these are the three ordered pairs which we write here. Now we write their domain. Domain is first पीछे element. एक 4 minus 2 भी तो है, जी पीछे एक 4 minus 4 और 2 2 ही का है। भी है एक, ये 4 और 2 है, लेकिन इसका भी इसमें आंसर y 2 है ना, तो 2 में से 4 माइनस करना है। फिर 2 minus 4 आंसर क्या होगा? 0.2 yes minus 2 जी I am showing you 2 minus 4 answer is minus 2, not 2. So it cannot be included. Clear? okay. So this cannot be included in it. I hope it is clear to you. Okay, now we go for the next question. Question number 6. Question number 6. Indicate relationship into function 1 1, function on to function, and bijective function from the following. हमने ये फंक्शन शो करने के, इनमें से कौन सा ये फंक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलेशन हमें दी हुई है, R1 रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4. फंक्शन इज बाइजेक्टिव. क्या लिखा हुआ है ये? फंक्शन इज बाइजेक्टिव. नाउ व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है, आई एम राइटिंग इट ऑन द साइड. बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें डोमेन ऑफ R1 is equals to domain of R2. ठीक है, तो इसमें डोमेन हमने और रेंज फाइंड करनी है. सॉरी ये रेंज है, इधर चेंज कर देता हूं. रेंज ऑफ R2 R1 सॉरी. अगर ये डोमेन और रेंज इक्वल हो तो वो बाइजेक्टिव हो जाता है. सो नाउ चेक दिस. Check the domain. Check the domain. Domain is 1 2 3 4. Check the range. Range is also 1 2 3 4. So domain and range are equal. So that is why it is a bijective function. It is also 1 1 function. 1 1 वो होता है जिसमें जिस तरह 1 है उसका रिलेशन 1 के साथ ही है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है. ठीक, अगर 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ रिलेशन हो, जिस तरह ये यहाँ पे है 1 रिलेशन 1 है, एक एक की रिलेशन है. 2 रिलेशन 2 है, 2 की 3 के साथ नहीं है, देखें 3 की 3 के साथ है, 4 की 4 के साथ है. तो ये इसको हम कहते हैं 1 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन. ठीक है, इट इज कॉल्ड 1 to 1 फंक्शन.
तो अगर कोई फंक्शन 1 to 1 हो, तो वो भी मिल के क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो बाइजेक्टिव के लिए दो कंडीशन है, 1 to 1 यानी एक नंबर का एक के साथ ही रिलेशन, दूसरे के साथ रिलेशन ना हो, तो हम उसको बाइजेक्टिव कहेंगे। अभी नेक्स्ट देखें, R2, दिस इज R2, 1 2 2 1 3 4 3 5। अब देखें ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 3 का रिलेशन जो यहाँ पे है वो 4 के साथ भी है एंड इट इज आल्सो विद 5। 3 का रिलेशन 4 के साथ भी है और 5 के साथ भी है। सो इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, इट इज ओनली जस्ट अ रिलेशन। ये सिर्फ रिलेशन है, सो इट इज अ रिलेशन। व्हाट वी राइट, इट इज अ रिलेशन। डोमेन इसमें क्या होगा, देखें डिफरेंट है, 1 2 3 डोमेन है, रेंज इसमें क्या है 1 2 4 5। so it is only relation, not 1 1 and not 1 2। clear? Yes. okay, next one R3 है, BA CA DA, ठीक है, BA CA DA, this is a function, it is a function। look at the domain of, domain is BCD and range is A। इसका मतलब हुआ इसमें जो रेंज है वो बाकी हर सेट, हर एलिमेंट के साथ हमें रिलेशनशिप बना रही है, तब वो फंक्शन बन जाएगा। देन वी सेड इट इज अ फंक्शन। ओके, क्लियर? नाउ चेक द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्लाइड। fourth part, look at this fourth part, R4 1 1 2 3 3 4 and 5 4, it is on to function। it is on to function। डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन इज 1 2 3 4 5 and range is 1 3 4। वन टू थ्री फाइव एंड 1 3 4। अब देखें रेंज जो है वो डोमेन से कम है, इट इज ऑन टू फंक्शन। डेफिनेशन भी हम इसकी एक दफा देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन की। check the definition of on to function, let us check the definition। okay, this is the definition, here we have the few definition। on to और subjective, on to और subjective की definition क्या होती है, this is the definition।
a function f from a to b, a and b are two sets, is called onto function if every element of set b is an image of at least one element of set a. यानी b का हर एलिमेंट का तकरीबन एक रिलेशनशिप हो और रेंज जो है इज रेंज ऑफ f, यानी रेंज जो है वो सेट b के इक्वल होनी चाहिए. रेंज अगर सेट b के इक्वल होगी तो फिर वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा. सर दोबारा समझा देंगे इसे? जी बेटा, अगर हम रेंज फाइंड कर लें, जो हमारे पास रिलेशनशिप है ना, जिस तरह आर, अगर उसकी रेंज जी फाइंड सर. करते हैं और वो रेंज सेट बी के इक्वल आ जाती है, तब ठीक वो सर. ऑन टू फंक्शन होगा. सर इनटू में फर्क क्या है? जी, इन टू फंक्शन जो है वो देख लें. इन टू में अगर रेंज जो है वो बी सेट के इक्वल नहीं आती, सर ठीक है, अगर वो बी सेट ठीक के सर. इक्वल नहीं होगी, देन इट इज इन टू फंक्शन. ठीक है सर. ठीक है, तो हमने रेंज चेक करनी है इन टू और ऑन टू के लिए. अगर रेंज बी सेट के यानी सेकंड सेट के इक्वल, देन इट इज ऑन टू. इफ इट इज नॉट इक्वल, इट इज इन टू. ठीक है सर. ठीक है, नाउ वी समझ कम टू गया. द क्वेश्चन. क्वेश्चंस पे फिर आ जाते हैं. जी, अब इसमें ये देखें रेंज, ये रेंज हमने फाइंड की है 1 3 4, इसकी रेंज आ गई है. अब ये जो 1 3 4 है ये सेट बी के इक्वल है, सो इट इज अ ऑन टू फंक्शन. ठीक है सर. ठीक है, वन वन फंक्शन क्या होता है कि हर एलिमेंट की एक एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप हो, वो वन वन फंक्शन होते हैं. मतलब सर पूरे वो सारे वही आ रहे हों? जी, सारे वही आ रहे हो. जिस तरह अभी ये देखें ना, डोमेन में. ये डोमेन मैं ज- पीछे बता देता हूँ. ये डोमेन है ना जी फिफ्थ सर. पार्ट की, इसकी रिलेशन ए की रिलेशन इसके ये बी के साथ है. कहाँ ठीक है. है ये रही ए बी. ठीक सर. अब बी की रिलेशन किसके साथ है? बी की रिलेशन ए के साथ है. तो ये एक ही साथ है. देखें ये रिलेशन आ गई. अब सी की ठीक सर. रिलेशन किधर है? सी की रिलेशन डी के साथ है. डी के साथ है. ये डी के साथ आ गई. और डी की ठीक सर. रिलेशन किधर है? ई के ई साथ के है. साथ. ठीक है, तो ये देखें ये चारों ये रिलेशंस बनी हुई हैं. इस तरह की जो ठीक है सर. रिलेशन होती है वो वन वन कहलाती है. एक एक देखें, हर वन. एक मेंबर डोमेन का रेंज के एक मेंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ठीक सर. कहलाएगा वन वन. ठीक सर. ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? जी सर. ओके, अभी ये सेवंथ पार्ट देख लें. इसमें ना हमें बजाय सेट उस तरह देने के R7 सर्कल की फॉर्म में दिया हुआ है. देखें ये सेट ए है, ये वाला सेट ए है. दिस इज सेट ए एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सेट बी. ये सेट बी है. अब ए का तो हर मेंबर बी के मेंबर के साथ रिलेशन में है, लेकिन क्यू के साथ नहीं है. ऐसे ही है ना, तो वन वन नहीं है ये. अच्छा, एक और चीज देखें, जब इसकी रिलेशनशिप आएगी तो क्या डोमेन जो रेंज है इसकी वो बी के इक्वल आएगी? रेंज यहाँ क्या बनेगी? रेंज इधर बनेगी ये वाला सेट, जिसमें पी होगा, जिसमें आर होगा और जिसमें एस होगा. इसका मतलब वो इसकी रेंज क्या है? पी आर एस. क्या ये सेट बी के इक्वल है? नो. तो ये कौन सा सेट होना चाहिए, इन टू या ऑन टू? सर वो रेंज इक्वल. रेंज इक्वल नहीं है ना, सो इट इज अ इन टू फंक्शन. इनटू. ये जो R7 है ना, ये इन टू फंक्शन होगा. बात समझ में आ रही है? जी सर. जी.
आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनटू, इट इज इन टू it is into function। इसी तरह यहां देखें, ये रिलेशनशिप है और कौन सी रिलेशन है? इसकी डोमेन देखें, डोमेन इसकी क्या है? 8 पार्ट की इसकी डोमेन है 137 और रेंज क्या है? CAB। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन नहीं है ये। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसकी जो डोमेन है ना उसमें एक एलिमेंट ये 5 वाला एलिमेंट इसमें मौजूद ही नहीं है डोमेन में, क्योंकि इसकी यहाँ किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है ना, एरो नहीं बना हुआ इसका, किसी के साथ एरो नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि जो ए सेट है ना उसका हर एलिमेंट बी के साथ ज्वाइन हो रहा हो, रिलेशन बना रहा हो, तो ये फंक्शन नहीं है। फिर ये क्या चीज होगी? ये रिलेशन है। ठीक सर, समझ गए। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे 5 यूनिट जो है वो फिनिश होते हैं। Here we have finished the 5 unit. Now I will stop sharing this and we will start unit number 3.